اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآغاز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت. دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس نازک ترین دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے. میرے مالک تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین گرامی ضرور آمین کہیے گا. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس پرآشوب وقت میں کم سے کم ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس عزت بھرے اجتماع میں بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ آمین نہ کہے. میرے مالک تجھے واسطہ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرمائے. ضرور آمین کہیے گا. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما. تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے. ماشاءاللہ مجمع کافی ہے. برائے حصول خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اجازت ہے نوکری شروع کی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. آپ تمام موالیان کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عظمت پناہ میں قبول و منظور فرما. سامعین گرامی صورتحال آپ تمام موالیان کے سامنے ہے. عزت بھرا جشن مجھ سے پہلے جاری تھا اور جتنے بھی اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ کے جا چکے ہیں. طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں. تقریباً کو 12-13 گھنٹے کا سفر کیا ہے جناب کے چہروں کی زیارتوں کے لیے. زیادہ نہیں پڑھنا، نوکریاں وہ تھیں جو ہو چکی ہیں، بس ایسے ہی حاضری لگوانی ہے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیف. بہت اچھا پڑھنے والے میرے مولا کی مدد سرا عقب میں ممبر پہ تشریف فرمائے. میرے مولا انہیں ہمیشہ نظر بد سے محفوظ رکھیں اور ہزار درجہ بہتر نوکری کرتے ہیں. اجازت ہے نا میں بھی کچھ پڑھ سکوں؟ مصر کا آیا میں پہلی بار ہوں لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کی میری فریکوینسی میچ ہو جائے تاکہ ہم آگے چل رہے. مصر کا بازار سجا ہوا تھا اور خریداران نے جناب یوسف کی قطار میں ایک ضعیفہ آئی اور اپنا نام درج کروا کر چلی گئی. بس ایسے ہی نام لکھوانا ہے لیکن صورتحال ذرا سی مختلف ہے کیونکہ وہ مصر کا بازار تھا، یہ علی کے بیٹے کا دربار. آمین گرامی میں اجازت لے کے سر ابھی آپ پڑھ رہے تھے تو باخدا مجھے ممبر پہ نیند آ گئی تھی. صورتحال ایسی ہے کہ وہ سفر ہی اتنے ہیں اور وہ جگراتے ہی کچھ اس قسم کے ہیں. باخدا کتنے دنوں سے گاڑی میں سفر کر رہا ہوں یہ مجھے بھی نہیں پتا. آپ تکلیف صرف اتنی کریں گے کہ میری بات سمجھ کے مسکرائیں گے، اس کے علاوہ میں آپ کو بالکل بھی زحمت نہیں دوں گا. دادیں مجھ سے پہلے ڈھیر ہو گئی ہیں، میرے بعد انشاءاللہ ڈھیر ہوتی رہیں گی، یہ سلسلے چلتے رہیں گے. مسکرانے کی تکلیف بھی علی کے بعض عسکری صرف آپ کو اس لیے دے رہا ہے جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ خدا ایک ہے، ویسے ہی مجھے یقین ہے جہاں بھی ان بادشاہوں کا ذکر ہو اس پورے علاقے میں، مسکرانے کی وجہ بتا رہا ہوں، پورے علاقے میں
किसी गरीब के घर में सुलगती हुई मोमबत्ती से लेकर आसमान पे चमकते हुए सितारों तक मेरा यकीन है जो कोई मुस्कुरा रहा होता है वो सिर्फ मुस्कुराता नहीं है, वो दुश्मन अली का कलेजा भी जला रहा है। मेरा अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे जो लिसानुल्लाह के जिक्र में, जो यदुल्लाह के जिक्र में बुलंद। बात को शुरू करते हैं सामीन ग्रामी, देखते हैं कि बात कहाँ चलती है। और आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि वो भी दूसरा प्रोग्राम पढ़ने के बाद मुझे रातों रात वापस लाहौर के लिए निकलना है और सुबह 10 बजे हर सूरत लाहौर होना है। अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है, सफ़र आपके सामने और बाई रोड मुझे सफ़र करना है। मैं ज़िंदगी में पहली बार इस हवाले से ऐसे गाड़ी पे आया हूँ। अब ये देखिएगा, मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, सिर्फ मुस्कुराइए और कुछ न कीजिए। यकम शाबान से 15 शाबान तक के जश्नों की मुबारकबाद इकट्ठी कबूल कीजिए। लम्हा भी जाए कि बगैर बात शुरू कर रहा हूँ। और कोई बंदा भी ये ना समझे कि मैं घर में फारिग बैठा हुआ था, मुझे कोई काम नहीं था तो चलो मैं जश्न में आ गया। आता वो है जैसे वो हस्तियाँ बुलाती हैं, हर कोई यहाँ पे आ ही नहीं सकता। पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक एक मुस्कुराहट मांग रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। और रखिए आप मेरे सर पे कुरान, अब और बात मेरे पास है ही नहीं आपके चेहरों की मुस्कुराहट के लिए। मुझे इज्जत हुसैन की कसम, आप खुश नसीब हैं जो इस महीने में इन बादशाहों का जिक्र, इनका जश्न बारगाह में आके मना रहे हैं। इनकी मोहर लगाने के बाद मुझे इज्जत हुसैन की कसम, आप इतने खुश नसीब हैं। पूरे इस्लामिक कैलेंडर में वाहिद महीना है ये माह शाबान, जिस पूरे महीने में मेरे मौला अली के घर में गम कोई नहीं और अली के दुश्मनों के घर में खुशी कोई नहीं। ज़बान से बोलना जैसे मेरे मौला ने ज़बान की नेमत से नवाजा। जो फ्रंट में बैठो मेरा भाई, शर्माना नहीं है मिस्टर, शर्माना नहीं है। जिक्र मौला अली का हाथ उठाना है माज़रत के साथ। तो यहाँ बैठे ये जवानियाँ सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे, मेरे मौला सलामत। मिल के नारे हाय अली। बंदा जाकिर के सामने फ्रंट पे बैठ के विलायत अली पे चुप कर जाए, उसकी तलाशी लेने पे दिल करता है। वो यारी समझ में आ रही है मेरी के नहीं है? इसलिए बात शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। मजमा ओके, सर जी बात शुरू करते हैं। अब मजीद तमहीद बांधना आप लोगों की जो है वो नॉर्मत के खिलाफ है। अब डायरेक्ट शेर पढ़ते हैं। उन्वान ढेर सारे हैं, हुक्म ढेर सारे हैं। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी एक नज़म पढ़ने का हुक्म है, लेकिन हम पहले वारिश ज़माना की बारगाह में, अभी 15 शाबान गुजरी है। अब जहाँ जहाँ आप चलते जाएंगे वहीं वहीं चलते जाएंगे। ये याद रखिएगा 8:33 हो गए हैं, मुझे फिक्स 27 मिनट के बाद मेंबर छोड़ना है। जितना आप सुन सकते हैं मैं उतना पढ़ लूंगा। सामीन गिरामी गुजारिश कर रहा हूं कि मिसरा जो अब पढ़ूंगा मैं अपने कलाम का, क्या वाले मेंबर दुआ फरमाएंगे? जब पढ़ने वाले दुआ फरमाते हैं तो जरा हौसला बढ़ जाता है। ये जो आप लोग खड़े हैं, मैं चाहता हूं पहले मवाली से लेकर आखिरी बंदे तक सारे मेरे साथ मिलिए और मिलकर अपने आका की बारगाह अज़मत पनाह में अपनी अपनी पेशानी को खम करते हैं। दूसरे मिसरे पे मुस्कुराइए, चौथे मिसरे के बाद मजमून खुल जाएगा। बात अली के बास अशकरी के कद से बहुत बड़ी है। 14 घंटे के सफर की कीमत दो और मैं गया। मैं इसी पे राजी हूं और कुछ नहीं मांग रहा। मिसरा राइट लेफ्ट क्लियर है, फ्रंट क्लियर नहीं है अभी तक। मिसरा जो अब पढ़ूंगा मैं अपने कलाम का, उन्वान है वो आज की पाकीज़ा शाम का। थकना नहीं है, अभी बात शुरू हो रही है। मिसरा जो अब पढ़ूंगा मैं अपने कलाम का, मिसरा जो अब पढ़ूंगा, ये भाईजान मुझे देखना, ये काम नहीं करना प्लीज। मिसरा जो अब पढ़ूंगा मैं अपने कलाम का, मैं लाहौर से यहाँ आ गया, आपका फोन बंद नहीं हो रहा। मिसरा जो अब पढ़ूंगा मैं अपने कलाम का, उन्वान है वो आज की। एक बंदा पहले से लेके आखिरी सफ तक इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की जात को गवाह बना के कहते अली अब्बास अस्करी मैंने सुना है, समझा है, मुझे लुत्फ नहीं आया। मौला की कसम मैं यही मिंबर छोड़ दूंगा, आज के बाद तुम्हारे इलाके में नहीं आऊंगा। और अगर इमाम ज़माना की जात ज़ामिन है, तुमने मेरा हक रख लिया तो तुम्हारा हाथ जाने और मेरे मौला जाने। सिंधी मुझे आती नहीं, मेरे भाई इतनी अच्छी पढ़े थे। सर जी उर्दू ही है, इसे कबूल करना। मेरे मौला जाने, तुम्हारा हाथ जाने। मैं बात करके जा रहा हूँ, माफी मांग के कह रहा हूँ। मिसरा जो अब पढ़ूंगा मैं अपने कलाम का,
उन्वान है वो आज की पाकीज़ा शाम का। तो माफी मांग के लिए अब्बास अस्करी कह रहे दुनिया को इंतजार है महशर का दोस्तों, महशर को इंतजार है मेरे इमाम। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे, मेरे मौला इन हाथों, जी जी जी, मेरे मौला इन आवाजों पे अपना रहम फरमाए। मिलके बोलो नारे हैदरिया। पढ़े आगे की शेर, इजाजत है इससे आगे की बात करें, करें इससे आगे की बात। एक चार पंज पंजाबी का जुमला वे, एक चार पंज मौलाई मेरे अगे बैठे होंगे ना कर्मा लो। दाएं भी जश्न है और बाएं भी जश्न है, सामने अल्लाह माफ करे इंज लगता है कुलखानी होती पई है। मुस्कुराइए थोड़ा सा, आप सबकी सेहतें मुझसे अच्छी हैं। हाथ खोल मेरा भाई, हाथ खोल, अपने आप को आजाद कर अपनी कैद से, और उठा हाथ, और हाथ उठा के मेरे सरकार को सलाम कर। इससे बड़ी कोई बात ही नहीं। मैं कहता हूँ कट के गिर जाए वो बाजू जो PSL के मैचों में उठे और अली के जिक्र में ना मिलके बोलो सखीना ये साउंड वाले भाई इसकी को बंद कर दे, अगला मिसरा मैं पढ़ लूं। अरे महशर को इंतजार है मेरे इमाम। सर जी महशर को इंतजार है, इधर देखना, जमाना याद रखे, ये शिया सुन्नी भाई मिलके जश्न मना रहे हैं। माजरत के साथ निहायत स्टूपिड तरीन आदमी है वो जो जगह जगहों पे बैठ के शिया सुन्नी की बहसें करवाता है। शिया सुन्नी के दुश्मन नहीं, सुन्नी शिया के दुश्मन नहीं, जहालत दोनों की दुश्मन है। खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता मेहरबानी फरमाएंगे दुकानदार लोग, हम वो हैं जिनके बारे में उसने कहा था लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, ये मेरी एहसन तरीन तख्लीक है, हमें इंसान रहने दो, हमें लड़ा लड़ा के हैवान बनने पे मजबूर मत करो। शिया सुन्नी दोनों घर बैठे में मेरे सामने तशरीफ फरमाए, और मैं दुनिया को एक मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की आबो हवा भी चलती रहनी चाहिए। मेरे अहले सुन्नत भाइयों, आप तशरीफ लाए, मैं खुद मेहमान हूँ, लेकिन मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं बताना मेरे भाइयों आपको गले से लगा के ये चाहता हूँ कि जब हमारी माएँ हमारी तरबियत करती हैं ना, तो उसमें खौफ खुदा को शामिल करती हैं। हमारे यहाँ बताया जाता है कि महशर क्या है, जिसका महशर पे ईमान नहीं उसकी तमाम चीज़ें फारिग हैं, क्योंकि ये महशर का दिन एक ऐसा दिन है जिस पे अच्छा खासा खुदा के कलाम में जोर दिया गया है। हमें किसी चीज़ की भूल नहीं है। मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को साथ मिला के दुनिया को पैगाम दे रहा हूँ, हमें पता है महशर का दिन कितना कड़ा होगा, हमें पता है उस दिन सूरज सवा नेज़े पे तो नहीं होगा, लेकिन उसकी हिद्दत इतनी ज़्यादा होगी कि लोग अपने ही पसीने में डूब के गर्क हो रहे होंगे। हमें पता है, हमें इल्म है कि उम्मतें अपनी अपनी हुज्जतों से कहेंगी कि बेशक खुदा से कहो हमें जहन्नुम में भेजो, लेकिन हमारा हिसाब शुरू करवाया जाए। हम ये भी जानते हैं कि किसी नबी में इतना हौसला नहीं होगा कि वो खुदा से कलाम करे, क्योंकि खुदा अपने जलाल में होगा। उस वक्त हर नबी के चेहरे का रुख मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब होगा, और मेरे आका उस वक्त अपना सर सजदे में रखेंगे। सजदे में सर रखने का फायदा ये होगा कि खुदा की जलालत पे उसकी रहमत हावी आएगी। जो डर गया वो तशरीफ ले जाए, लेकिन जिसके सीने में दिल नहीं, विलायत अली धड़क रही है, वो कैसे अपना हाथ नीचे रखेगा। अब मैं जमाने वालों को कह रहा हूँ, हम मानते हैं महशर का दिन बहुत कड़ा है। ये कैमरामैन मेरे भाई जरा उठे, कैमरा फेरे, मुझे बंदा दिखाएं जो डर गया, जो परेशान है। मैं उसके पास आके हिला जुला के उसकी हार्ट बीट चेक करूँ कि वो जिंदा जागदा कि मैं विलायत अली सुन के नहीं बोल सकता। दुनिया वालों तुम परेशान हो, हम मुतमईन हैं। अरे उसकी वजह यह है शऊर सुबह अज़ल की ये शाम ज़ामिन है, मिलेगी खुल्द यकीनन कलाम ज़ामिन है। और हमें निजात के चक्कर में डालने वालों, तुम अपनी सोचो, हमारा इमाम ज़ामिन है। जो डर गया वो रहने दे, जो रियाया बन के बैठे मिल के बोले हैदर 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 हैदर। अरे हमें निजात के चक्कर में डालने वालों,
یہ محلہ چپ نہیں ہونا چاہیے. سجا وقت بھی سجا ہوں بھی. ہمیں نجات کے چکر میں یہ محلہ ڈالنے والوں. پڑھیں اگلی بات. تم اپنی سوچو. حضرت حسین کی قسم ایک علی عباس عسکری آپ کے سامنے کھڑا ہے, کوئی 100 علی عباس عسکری بھی میرے بس میں ہونا میں اس جملے پہ وار کے پھینک دوں. مولا کی قسم مرنا قبول تھا علی عباس عسکری, یہ موتی کبھی تمہارے حوالے نہ کرتا اگر تمہارے اندر ولایت کا جوش اور جادو نہ ہوتا. میں جملہ کہہ رہا ہوں, ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں بھاگ کے جانے کا زمانہ نہیں, یہ سپیکر پہ منہ ہے, یاد رکھے زمانہ. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, ذمہ دار قوم کا طالب علم بن کے بلا رہے ہیں اپنے امام کو, اور پورے یقین سے اپنے امام کو بلا رہے ہیں, اور ہم خوش ہیں کہ ہم, یاد رکھے زمانہ ایک طالب علم کے یہ جملے, ہم خوش ہیں کہ ہم اپنے امام کو بلا رہے ہیں. پریشان تم ہو, پریشان ہم نہیں, ہم مطمئن ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں میرے آقا نے آنا ہے تو آتے ساتھ قاتلان حسین سے انتقام لینا ہے. ہم مطمئن اس لیے کیونکہ ہماری صفوں میں کوئی حسین کا قاتل نہیں ہے. یہ بات تھی مشکل بات تھی. ہم مطمئن ہیں, ارے ہماری صفوں میں کوئی حسین کا قاتل نہیں ہے. بھائی جان ذاکر کے سامنے یہاں بیٹھنا اور چپ بیٹھنا تقریباً گناہ ہوتا ہے. اس نے احمد فراز نے کہا تھا, منتظر کب سے تحیر ہے تیری تقریر کا, بات کر تجھ پر گماں ہونے لگا تصویر کا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مجمع اس کے بعد آ کے آپ کو کہے کہ علی عباس عسکری کو کیوں بلایا تھا, لیکن یہ بات اب میں کر کے جاؤں گا اس بھائی کی چپ کی وجہ سے. موبائل میرے بھائی نیچے کرنا. اگر یہ میرے سامنے میرا بھائی ایسے چپ نہ بیٹھا ہوتا میرے اندر ایسے آگ نہیں لگتی. اب میں بات کر رہا ہوں, اور روٹتا ہے کوئی تو روٹھے, ورنہ جملہ مجھے کہنے دیں اور میرے مولا کا کرم دیکھیے گا. ہم مطمئن ہیں ہماری نسلوں میں حسین کا, صفوں میں کوئی حسین کا قاتل نہیں. یہ دیکھنا دنیا والو, ایک بار تم میرے آقا کو تشریف لانے دو, تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی گڑھے مردے اکھاڑے کیسے. ارے کوئی تو ہو جملہ سمجھنے والا, کوئی تو ہو مشکل بات کا وزن کرنے والا یار. تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی. ہاں پڑھیں اگلا شعر, پھر چلے آگے. ٹھیک ہے اب پڑھ لوں, یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے. گڑھے مردے اکھاڑے کیسے جاتے ہیں, پھر سنو. اب مجھے تنہا نہ کرنا, مولا کا واسطہ, میں آدھے سے زیادہ پڑھ چکا ہوں. یہ دیکھنا جب میرے آقا تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا, کیا ہوگا ظاہر, کیا ہوگا. مصر میرے آقا آئیں گے تو کیا ہوگا, اٹھے گا شور, اٹھے گا شور, صفے کارزار سے بھاگو. تین لائنوں کی چھٹی, خدا کا واسطہ آخری صف تک کے موالی کا مجھے چوتھے مصرے پہ ہاتھ بلند چاہیے جو کنارے کی دنیا کا مسافر بیٹھا ہے, نہیں تو میرے مولا امام زمانہ جانے اور اس بندے کا ہاتھ جانے. آقا آئیں گے تو ہوگا کیا, اٹھے گا شور, صفے کارزار سے بھاگو, برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو, مصرعِ صدا کسی کے مقدس دیار سے بھاگو, کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو. ارے مصرع بڑا تھا علی عباس میں, کوئی کہے گا نکل کر مزار سے, مزار رکنا, مصرع سننا, مزار سے بھاگو, 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 نکل کر مزار سے بھاگو. کیوں بھاگے, تو علی کے دشمن علی کے دشمنوں کو کہیں گے ارے ہمارا بھاگنا بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا, اور وہ آ گیا برے خیبر اکھاڑنے. مل کے بولو حیدر, حیدر, قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا. سب مجھے پہننے بھی نہیں آتی, یہ ابھی تو اتاری تھی تھوڑی دیر پہلے. دل بولا زمین بانی پلک بولا, زمین بانی پلک بولا,
उठिए उधार वाली बात ही नहीं। अब इस मजमे को देखना है, हो आपकी मेरी लड़ाई जाएगी अगर अब कोई बंदा चुप कर गया तो। मिसरा में पढ़ रहा हूं, नारा ना लगाते तो मौला की कसम ना पड़ता। हर हवाले से देखने मिसरा लिटरेचर के पायों पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतरा, बगैर किसी विजात की मिसरा निछावर कर रहा हूं। मिसरा वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के। दूसरे मिसरे में मेरा भाई इधर देखना है, वो जब आएगा, ये मोहल्ला मैं आपके हवाले कर रहा हूं और ये मोहल्ला मैं आपके हवाले कर रहा हूं। सर जी वो पीछे वालों से मुझे दाद लेके देनी है, फ्रंट वाले मेरे हवाले तो मैं अल्लाह दे हवाले। क्योंकि आपने बिल्कुल मेरे साथ नहीं बोलना। वो जब आएगा, मिसरा अली अब्बास के कद से बड़ा है। अरे वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के, फिर भेद खुल जाएंगे सब दीन के गद्दारों। ये हाथ सलामत रहे, वो जवान का हाथ सलामत रहे, वो जो पीछे से खैरात आ रही है ये हाथ सलामत रहे। मेरे मौला इन हाथों पे अपना रहम फरमाए, मेरे मौला इन हाथों पे अपना करम फरमाए। ये हाथ इमाम हुसैन के हरम से मस हो। वो जब आएगा, आपका हाथ सलामत रहे मेरे भाई, वो जब आएगा। सिंधी नहीं आती क्या करूं, अगली बार सीख के आऊंगा। वो जब आएगा तो दिन पलटे, मैं मेहमान हूं। वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे। कैमरामैन इधर 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 इधर, मिसरा चौथा बड़ा आ गया। वो जब आएगा तो दिन, इससे बड़ा किनाया अली के पास अस्करी की गुफ्तगू में नहीं। मिसरा है वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के, भेद खुल जाएंगे भेद खुल जाएंगे सब दीन के, सब दीन के गद्दारों के। मिसरा पढ़ लो, रंग उड़ जाएंगे, अरे रंग उड़ जाएंगे चेहरों से जफाकारों के। वो जिगर चीर के रख देगा जिगर खारों के। वो जिगर, हाथ नीचे नहीं, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। मैं मिसरा भी पढ़ रहा हूं, अभी मुझे शेर पढ़ना है, हाथ कोई नीचे नहीं करेगा। वो जिगर काट के हाथ नीचे ना करना वाला व्यवस्था, काट के रख देगा किनके, जिगर खारों के जिगर चीरेगा तो क्या होगा, वो जिगर काट के रख देगा जिगर खारों के। तो अस्करी माफी मांग के कह रहा है या अली कह के वो फौजों पे जो चढ़ जाएगा, मीर हमजा का जिगर और भी बढ़ जाए। मिलके बोलो सखीरा निकलंदे। या अली कह के, या अली कह के वो फौजों पे जो चढ़ जाएगा, अरे मीर हमजा का जिगर और भी बढ़ जाएगा। क्या बात है कितना, क्या बात है, वाह 11 मिनट बकाया रह गए ने मेरी गुफ्तगू को। अब 11 मिनट में एक हमला पढ़ना चाह रहा हूँ। अपने हिस्से की नौकरी हो गई, हुक्म पूरा कर रहा हूँ। मौला सलामत रहे, बिस्मिल्लाह जी सरायकी पढ़िए, बिस्मिल्लाह पढ़ जाओ। सरायकी पढ़ते हैं जनाब, आपके हुक्म की तामील अभी पढ़ते हैं, पर यहाँ से दाद आनी चाहिए। बड़ो मस्त मलंगा नू ए दुनिया एवें पागल कहंदी है। अरे मस्त मलंगा तन मेरा मौला बुलावे आके तो बुलावे, मेरे वस दी गल कोई नहीं। मस्त मलंगा नू ए दुनिया एवें पागल कहंदी है, ना कुछ लेना ना कुछ देना, एवें ही घूरदी रहंदी है। अभी सुन के मस्त मलंगा नू ए दुनिया एवें, मेरे मौला इनकी ये अज़ादारी कबूल फरमाए। मेरे भाई कैमरामैन से लेकर यहाँ की तमाम इंतजामिया सिक्योरिटी वालों तक, मेरे पढ़ने वाले सामईन तक रोड़ी अब्बास अस्करी हकीर के चंद लफ्ज भी। मस्त मलंगा नू ए दुनिया एवें पागल कहंदी है, ना कुछ, मैं एक फार्मूला देके जा रहा हूँ, ना कुछ लेना ना कुछ देना, एवें ही घूरदी। ये हमारा लाहौरी एक्सेंट है, लाहौर वाले पंजाबी ऐसे बोलते हैं, ना कुछ लेना ना कुछ देना, एवें ही घूरदी रहंदी है।
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸੁੱਚੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਈ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੁੱਲਾ ਨਾਲੋਂ ਜੁਗਣੀ ਚੰਗੀ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਬਈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ہے. मस्त मलंगा नू ये दुनिया में पागल कहती है. दोबारा इससे अगला सुने, मैं तो कहता हूँ इससे अगला सुने, इससे अगला, वो इससे भी मजे का. वो हो रही थी एक, अब जहाँ पे जाता हूँ वहाँ यहीं पढ़ने का हुक्म कर देते हैं. वो कोई सोसाइटी में ना एक पिच लगी हुई थी और 4 बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे. चोपा पैसे कर गए जैसे ये लफ्ज पहली बार सुना है आपने. चंद बच्चे जो थे वो क्रिकेट खेल रहे थे. वहां पर एक मलंग चला गया. मलंगों के पास एक सरकारी डंडा भी होता है. कहते हैं हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और. अब मुझे सुनिएगा. अब वो उसके पास वो डंडा था, वो चला गया और जाकर मलंग ने बच्चों से कहा भाई तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो तो चलो मुझे भी अपने साथ क्रिकेट खिलाओ. उन बच्चों ने कहा भी मलंग चाचा हमारे पास ये बैट है, बॉल है, उर्दू इस्लाम में गेंद बल्ला है, हम इसके साथ क्रिकेट खेलते हैं, तुम कैसे खेलोगे. तो वो उसके पास जो मुताहिर थी, वो जो मुताहिर जो एक डंडा होता है जो मौला अली की जानिब से उन्हें मिला हुआ होता है सरकारी तौर पे, अब उसके पास वो डंडा था. बच्चों ने कहा कि चाचा तू कैसे खेलेगा. उसने वो डंडा निकाल लिया. उसने कहा मैं इससे खेलूंगा. अब आप चेहरे देखिए कौन नहीं मुस्कुराता और कौन परेशान बैठा है. इधर देखना. उसने वो डंडा निकाला. बच्चों ने कहा हम तो बैट बॉल से खेलेंगे, तू कैसे खेलेगा. उसने कहा इससे. बच्चों ने कहा कैसे. उसने कहा तुम्हें बताऊं मेरे खेलने का अंदाज बड़ा मुख्तलिफ है. बच्चों ने कहा कैसे. वो बच्चों को घेर के एक जगह पे खड़ा हो गया. उसने कहा सुनो मैं खेलता ऐसे हूँ, मुनाफिक को विटका तो धक्के मरेगा. आखिरी से पहले वाली सर उठाइएगा. मुनाफिक को विटका तो धक्के मरेगा. कम अज कम इधर देखिएगा. ये वो बात है जो मैंने कराची भी नहीं कही थी, जो वो वीडियो देख चुके. जिस बंदे को रई के दाने बराबर भी शनासाई है ना कि बैटिंग क्या होती है, बॉलिंग क्या होती है, वो मैं कहता हूँ बेसाख्ता बोलेगा. अंपायर मिजाज लोगों से मेरी बात नहीं है. अब मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ. उसने कहा मुनाफिक को विटका तो धक्के मरे ना ते लानत दे ओवर करे ना. मुखालिफ है जेड़ा भी मौला अली दा तबर्रे दे चौके ते छक्के मारे ना. इनके मौला सखीरान करंदे. आप राजी रहिएगा. मेरे मौला आपको सलामत रखे. मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करे. मौला की कसम. अब मजलिस का एक फॉर्मेट और होता है, जश्न का हिसाब किताब और होता है. जश्न में बंदा और हिसाब से पढ़ता है, मजलिस में और हिसाब से पढ़ता है. वरना मैं मजलिस में जाते ही हूँ तो बाखुदा मेरे मौला जानते हैं, जो मुझे सुनने वाले हैं उन्हें पता है मैं कुरान की आयत को लेकर शिया सुन्नी किताबों के हवाले देकर उसकी ज़िम्मन में मुकम्मल गुफ्तगू करता हूँ. लेकिन ये जश्न है, यहाँ पर मकसद ही मुस्कुराना है. यहाँ पर तो हमने ये देखना है कि कौन किससे ज़्यादा खुश है और कौन कम है और कौन बिल्कुल नहीं. अब जो जरा सी भी मुस्कुराहट हो उस पर तो अली अब्बास अस्करी जान वार दे, और जो जरा भी खुश ना हो मैं उसके बारे में ये कहता. आप इधर देखिए, आपको मिसरा चेहरों पे फिट नजर आएगा. जो जरा भी खुश ना हो ना मासूम के जिक्र में, मैं तो वो नौकर हूं जो ये तक कह देता हूं कि जो आ गया है बका की नवीद लगता है, तमाम हुस्न उसी की खरीद लगता है. जो आ गया है, कैमरामैन जल्दी मेरा भाई अपनी जगह बना, मैं शेर रोक के बैठा हूं. जो आ गया है, जो आ गया है, अरे जो आ गया है बका की नवीद लगता है, तमाम हुस्न उसी की खरीद लगता है. और जिसे खुशी नहीं मेरे सखी के आने की, कसम खुदा की वो बंदा यजीद लगता. अब दिल के बोलो सखीना करंदे. बहुत अच्छा. जो आ गया है बका की, मिंबर छोड़ू राजी रहिएगा. जो आ गया है, कैमरामैन मेरे भाई आप मेरे पास बहुत अच्छे लग रहे थे वैसे. जो आ गया है बका की नवीद लगता है. ठीक है ना जनाब. और दाद भी दे आए. जो आ गया है बका की नवीद लगता है. तमाम आखिरी 6 मिसरे. जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी. या अली मदद. फिर कभी तक इंशाल्लाह जिए तो आपको सलाम करेंगे, वरना ये सलाम आखिर है. मजमून माजरत चाहता हूँ नहीं पढ़ सका, वक्त कम था.
आखिरी 6 मिसरे और ये देखना, मैं कहता हूं आसमान छोटा है, मैं कहता हूं ये मिसरे बड़े हैं, ये देखना जहां जहां बैठे हो। माफी, मैं जहां जाता हूं मुझे हुक्म होता है, लेकिन मेरा अपना दिल है कि इस हसीन मजमे में मैं अपनी तरफ से पढ़ूं। ये देखना, माफी मांग के कह रहा हूं, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। मुझे वो अक्ल का अंधा, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता। 2 लाइनें सर जी, जिसे ये पहले भाई से लेके आखिरी बंदे तक, ओ मेरे भाई हो, आप उसकी एक बात करते हैं। अब माजरत के साथ की फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, ये कोई मुकम्मल खिताबत नहीं है, लेकिन ये उधार हो गया। रही जिंदगी तो इंशाल्लाह इस सेशन का उधार पूरा करके जाऊंगा। अभी सिर्फ मैंने टाइम पूरा किया है। शेर पे शेर बड़े अफसोस मुझे भी रहेगा कि मैं कोई मजमून या कोई जंग या कोई हमला नहीं सुना सका, लेकिन अगर आधे मिनट के लिए मेरे साथ तावन करो ना, आधे मिनट के लिए, मैं चाहता हूँ सारे मिल के यहाँ से परवाज करें और जाकर नजफ अशरफ में ब्रेक लगे। मुझे वो अक्ल का अंधा जो यहाँ मेरा नशा न तोड़ना मेरे भाइयों, मुझे वो अक्ल, चौथे मिसरे पर लम्हे के लिए रुकना। ये पूरा पिंडाल अपने पांव पे उठ के बोले दाद थोड़ी है बात बड़ी है। अली अब्बास अस्करी के पास इससे अच्छा स्कैनर ही नहीं है। अरे मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। और ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। यही प्रेरणा मैं आखिरी 2 मिसरे पढ़ रहा हूँ। मुझे वो अक्ल का छोड़ रहा है अली अब्बास अस्करी मिंबर, जब तुम्हारा बोलने में दिल आएगा मैं अपनी गाड़ी में बैठ के सफर कर रहूंगा। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे, ये हुसैनिया नज़ार, ये लाइव वाले, ये कैमरे वाले, मेरे भाई वीडियो बनानी है, मैं चेहरे देखना चाहता हूँ। वो बंदा कौन है जो अपना हाथ नहीं उठाता? मैं बारे दिगर कह रहा हूँ, ये पिंडाल पांव पे उठ भी जाए तो कीमत अदा नहीं होती। मिंबर अली अब्बास अस्करी छोड़ रहा है। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। हमारे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। तो माफी मांग के कह रहा हूं, फलक से दुम्बे का आना समझ तो आता है,